Okay, students, as you had doubts last time about that social project specifically, so today we have here Mukta and Sankalp. So we will start with that particular explanation. Okay, see what I'm trying to tell you through that social part is basically you all know that when you are going for such a high level examination like UPSC or similar exams, probably your awareness about the surroundings, specifically talking about the public of your own country and various cultures, societies, is very important. And to know that particular information, only reading history, geography, current affairs will not be sufficient. You need to go through Indian map, various regions, cities, some specific districts, and need to know the speciality of this particular district. So what project can be there which can address these particular things? What came to my mind is some sort of a analysis which will help us to go around India, maybe in a IT way. Like suppose I deliver lectures on science, technology, time management, science communication, so many things. So I just wanted from your end that if you want to be part of this particular type of venture or project, if you are interested, we will allot you some specific assignments which will be very, very small. Like suppose you allot some 5-10 minutes or weekly some 15-20 minutes or half an hour to these projects, where you will be hunting down or you will be gathering information about some specific state, some specific district, and then specific educational or related institution where we can, or initially I will deliver lecture. Then probably when you will be mature enough to give similar type of sessions, you will start interacting, and it will help you to boost your confidence, probably to improve upon your communication skill. So what is that exact project is? The first assignment is, tell me your area of interest, which you didn't reply. Like Sankalp or Mukta, you didn't reply what was your area of interest in which you would like to do community service. Now, if you don't know what is public outreach, if you don't know what is community service, then these things need to be learned by you on Google. But फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पब्लिक आउटरीच इज रीचिंग द पीपल मासेस, जनरल पब्लिक के साथ आपको जुड़ना है और उनमें उस तरीके का अवेयरनेस फैलाना है जो समाज के तरक्की के लिए जरूरी है. जैसे यू कैन टॉक अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल, यू कैन टॉक अबाउट ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका क्यों नहीं होना चाहिए. यू कैन टॉक अबाउट साइंस, साइंटिफिक थिंकिंग. You can talk about pollution control, you can talk about sustainable development, you can talk about nature conservation and protection, you can talk about the improvements possible in various skills development, probably agriculture, and so many other things which you will be reading in your academics. तो ये सारी चीजें उसके रिलेटेड पेपर्स जब आप पढ़ेंगे भविष्य के लिए, तो आपको इसमें जो पसंद वाला फील्ड आएगा, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी रिलेटेड होगा, इसको आपको चूज करना है. तो इसमें मैं आपकी मदद एज ए गाइड कर सकता हूँ, बट टॉपिक आपको ही चूज करना है. एक बार टॉपिक चूज हो गया, फिर आपको वीकली एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ना है और उसके ऊपर फर्दर काम क्या करना है, इसके ऊपर हम आपके लिए मैंने एक टीम लीडर डिफाइन किया है, एंड दैट टीम लीडर इज मंगलम सर. So Mangalam sir will be taking your CSAT related aptitude and other things. He will be taking your geography. Then he will be also leading this particular social part of our campaign. Okay. इन सोशल प्रोजेक्ट्स जो भी हम करेंगे उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स में मंगलम सर आपको मदद करेंगे. तो लास्ट टाइम जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था उसमें राजवीर था, देन वी हैड मुक्ता, देन संकल्प, एंड ये लोगों ने जो इंटरेस्ट दिखाया था, प्रेरणा ने दिखाया था. बट प्रेरणा के लिए एक एडवाइस है कि शी इज इन 12th. तो 12th वाले बच्चों को इसमें नहीं आने की जरूरत है. एक साल आप अच्छे से पढ़ाई करो, जब आप FY में जाएंगे या फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाएंगे तब आपसे मदद ली जाएगी. संकल्प इज इन 11th, सो दिस ईयर ही कैन हेल्प अस आउट, और दिस ईयर ही कैन पार्टिसिपेट पार्शियली. अभी हम इसमें ज्यादा वक्त नहीं जाया करेंगे. मैंने जो शुरुआत में बोलना था 2 मिनट बोल लिया. अभी आप योगेश सर का जो आज उनका इकोनॉमिक्स या उससे रिलेटेड लेक्चर होगा वो सुन लीजिए. और जो बच्चे 12th से रिलेट 12th में है या इंपॉर्टेंट एग्जाम में जुड़े हुए,
उनको ये साल इस यूपीएससी के क्लास में ज्यादा ध्यान, सिर्फ क्लास में ध्यान देना है, उसका ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इंडिविजुअली मैं आपसे अलग से बात करूंगा कि जिसका इंटरेस्ट है उसका, बट आपकी तरफ से वो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए। नहीं भी आएगा तो सैटरडे संडे में मैं आपसे बात कर लूंगा, जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया था। नाउ योगेश सर, यू कैन टेक द चार्ज एंड प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। Okay, sir. Thank you. Okay, students. So please let me know, am I clearly audible to you or not? ओके ठीक है, थैंक यू। स्क्रीन शेयर की गई आपको सभी को दिख रही है? ये स्क्रीन इज विजिबल टू यू? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, so this is our fourth lecture of economy, right? And we were studying the pillars of economy. In the previous lecture, I have already told you that the economy for UPSC is primarily divided into 6 pillars, right? And so we have started our very first pillar, that is money, banking, and finance, insurance, right? And in the first pillar, we are studying very first topic, that is money. Okay, so what we have studied in the money topic, money, we have studied origin of money, functions of money, right? Then we are studying evolution of money, right? And in the evolution of money, we are at, we have already completed commodity money. हमने commodity money क्या है वो देख लिया है, metallic money क्या है वो भी देख लिया है। बाद में जो टोकन मनी या फिर रिप्रेजेंटेटिव मनी, फियाट मनी, लीगल टेंडर क्या है, इसके बारे में भी हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, ठीक है। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लास्ट लेक्चर से, वो है बैंक मनी। ओके, तो बैंक मनी में हमको, हमने क्या क्या देखा है और हमको क्या देखना है, राइट? तो बैंक मनी एंड डिपॉजिट मनी, इस टॉपिक में हमने पेपर ऑर्डर्स देख लिया, राइट? चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, राइट? ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? प्लीज लेट मी कंफर्म वंस अगेन। ओके, थैंक यू। ओके, if you have any doubt you can ask in the chat box, okay? ओके, तो ये जो बैंक मनी और डिपॉजिट मनी जो है, इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है और इसके अंडर हमको क्या क्या पढ़ना है? पेपर ऑर्डर, राइट? देन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, देन डिजिटल पेमेंट, एंड द लास्ट वन इज कैशलेस इकोनॉमी। तो व्हाट वी हैव स्टडीड प्रीवियसली, हमने सीखा पेपर ऑर्डर, कैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं और उसके टाइप क्या होते हैं, राइट? आई होप यू रिमेम्बर चेक के कौन कौन से टाइप है, थ्री टाइप्स ऑफ, थ्री पार्टीज ऑफ चेक हमने सीखा, ड्राई, सेंडर एंड ड्रावर, राइट? उसके बाद में हमने डिमांड ड्राफ्ट क्या है वो देखा, ओवरड्राफ्ट कैसे होता है वो देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, राइट? प्रीवियस लेक्चर में उसमें क्या सीखा हमने? नेफ्ट और आरटीजीएस। और उसके बाद हमने चालू किया था डिजिटल पेमेंट, राइट? उसमें हमने एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन आईएमपीएस क्या है वो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये प्रीवियस लेक्चर्स की कुछ स्लाइड्स है, ये आप यहाँ पे मैं इसको ऐसे स्लाइड्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू, ओके। तो यहाँ पे हमने नेफ्ट और आरटीजीएस पढ़ा था। तो नेफ्ट और आरटीजीएस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर का एक टाइप है। उसमें हमने देखा कि नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या डिफरेंस है, राइट? नेफ्ट 24/7 अवेलेबल है। नेफ्ट का क्या मतलब है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। अगर मुझे मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से
एक्सिस बैंक के अकाउंट में, मतलब मेरा बैंक छोड़कर किसी दूसरे बैंक के व्यक्ति को अगर मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मैं किस प्रकार से पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है, और वो भी बड़ी वैल्यू। तो एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस डिफरेंस, ओके, कि मिनिमम जो वैल्यू अमाउंट है वो क्या है, देन मैक्सिमम अमाउंट क्या है, मतलब नेफ्ट और आरटीजीएस से हम मिनिमम कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने प्रीवियसली पढ़ लिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में अवेलेबिलिटी, कौन सा 24/7 अवेलेबल है और कौन सा सिर्फ वीकडेज में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर के बाद हमने स्टार्ट किया था डिजिटल पेमेंट, और उसका एक पार्ट है IMPS, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो उसको भी हमने यहाँ पे इस टेबल में देखा था कि उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है 24/7, ठीक है। IMPS का क्या मतलब है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, जो हम अपने मोबाइल से पेमेंट करते हैं, ठीक है, फोन पे, गूगल पे, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नेट बैंकिंग उसे जो बोलते हैं उसका हम यूज करते हैं, उसे बोलते हैं IMPS। मतलब वो जो सिस्टम होते हैं वो इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम, ये इस प्रकार के सिस्टम का यूज करके वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। एक और डिफरेंस क्या है, ये जो IMPS बेस्ड जो ऐप से हम ट्रांजैक्शन करते हैं और आरटीजीएस और नेफ्ट में, तो बेसिकली आरटीजीएस और नेफ्ट ये दोनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिस्टम है, राइट। लेकिन IMPS किसका सिस्टम है, IMPS इट्स द सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो क्या है, वो भी हम आगे उसको भी समराइज करेंगे, ठीक है। लेकिन IMPS के द्वारा हम देखते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है 24/7 है, और उसकी मिनिमम कितने पैसे हम उससे सेंड कर सकते हैं, ₹1, मैक्सिमम कितने, ठीक है, 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये एनपीसीआई कैसे काम करता है ये हमने प्रीवियसली देख लिया, राइट। प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी भी हमने देख लिया कि एनपीसीआई का जो हम IMPS यूज करते हैं, तो पहले क्या होता था कि मोबाइल वॉलेट्स हुआ करते थे, ठीक है। आपको अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आपका फोन पे का जो मोबाइल वॉलेट है उसमें आपको पैसे ड्रॉ करने पड़ते थे आपके अकाउंट से, और आप सिर्फ उस वॉलेट से ही पैसे ट्रांसफर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको फोन पे के वॉलेट से किसी के मोबिक्विक या गूगल पे के वॉलेट में अगर पैसे ट्रांसफर करने हो तो वो पॉसिबल नहीं था, और दैट इज नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, ओके। तो उसको ओवरकम करने के लिए आरबीआई ने क्या क्या गाइडलाइंस इशू की वो भी हमने देख लिया, ठीक है, ओके। उसके बाद में हमने जो ये IMPS नाम का जो सिस्टम हम पढ़ रहे थे उसको किसने डेवलप किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉर्पोरेशन है, ठीक है। कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। और ये कंपनी किसने स्थापित की है, तो 10 बैंकों ने मिलकर इसको स्थापित किया था। ये कौन कौन से बैंक है यहाँ पे उसके नाम दिए गए हैं, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो किस किस चीज के लिए ये कंपनी स्थापित की गई थी कि जो बैंक के द्वारा पेमेंट किए जाते हैं उसको डिजिटलाइज करने के लिए और पेमेंट के नए नए अच्छे माध्यम को डेवलप करने के लिए इस कंपनी की स्थापना या कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी, और ये कंपनी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है, ओके। देन ये जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये जो कंपनी है, ठीक है, इसने कौन कौन से प्लेटफॉर्म डेवलप किए ये हमने सीख लिया, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि CTS, तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है वो हमने देख लिया कि पहले चेक क्या होता था कि बैंक में जाकर हम उसको डिपॉजिट करते थे और फिर उसको बैंक वाले उसको स्कैन वगैरह करके उनका जो प्रोसीजर है वो करके उसको उसका पैसे का लेन देन हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि आपको फिजिकली जाना नहीं पड़ता,
बैंक में चेक लेकर, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग चेक ट्रंकेशन सिस्टम यू कैन जस्ट सिंपली scan your check and you can send this scanned image of check to the bank, and then bank will do further procedure on it. Okay. सिर्फ आपको उस चेक की एक इमेज अपने मोबाइल से स्कैन करके सेंड करनी है, किसको, बैंक को, ठीक है। तो पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन चेक ट्रंकेशन सिस्टम की मदद से ये पॉसिबल हो सका। और ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी सीटीएस किसने डेवलप किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एनपीसीआई ने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए गए हैं, ठीक है। उसके बेस पे एक यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, वो भी हम आगे जाकर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये भी हमने देख लिया कि आधार कार्ड की मदद से, सिर्फ आधार कार्ड की मदद से आप कैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। देन नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो एटीएम नेटवर्क को कनेक्ट करता है, वो भी हमने देख लिया, राइट। देन भारत बिल पेमेंट सिस्टम कि आपके जो घर के जो यूटिलिटी बिल्स है, फोन का, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो हम हमारे जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो हमारे फोन पे, गूगल पे या फिर बैंक के जो वेरियस ई बैंकिंग के जो सॉफ्टवेयर है, उनकी मदद से हम कैसे सेंड कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया कि एक बीबीपीएस नाम का सिस्टम होता है, उससे हम अपने यूटिलिटी बिल्स भी पे कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर हमें मंथली बड़े बड़े बिल्स पे करने हैं या फिर सैलरीज पे करनी है, तो उसके लिए भी एक सिस्टम डेवलप किया गया है, उसका नाम है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस, NACH, वो भी एनपीसीआई ने बनाया है, ठीक है। देन यहां तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, व्हाट इज यूपीआई, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस वर्ड बिफोर, आप में से कितने लोगों ने यूपीआई का नाम पहले सुना है, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप में से सभी लोग शायद इसका इस्तेमाल करते होंगे जब आप अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हो, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा। तो आप में से कितने लोगों को ये यूपीआई आपने सुना हुआ है या फिर इसके बारे में आपको पता है, हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, नो सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, अगर आपने कभी अपने फोन से, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से वगैरह से आपने अगर ट्रांजैक्शन किया होगा, तो आप ये यूपीआई के बारे में पता होगा, ठीक है। तो बेसिकली यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो नाम से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा टेक्निकल नाम आ गया तो हमको टेक्निकल डिटेल्स जानने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हम यूपीएससी के लिए जितना जरूरी है पढ़ना, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यूपीआई क्या है, पहली बात तो आपको ये समझना है कि यूपीआई इज द सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसको डेवलप किया है एनपीसीआई ने। जैसे एनपीसीआई ने ये बीबीपीएस, एनएसीएच, देन सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम जैसे डेवलप किए हैं, वैसे ही यहाँ पे एनपीसीआई ने यूपीआई भी डेवलप किया है, ठीक है। ओके, तो पहले तो आपको यह बात समझने की जरूरत है कि यूपीआई को डेवलप किसने किया है। इसको डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो इसको यूज कौन करता है, इसको यूज करते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे, ठीक है, वो इसको यूज करते हैं, ठीक है। और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है, जो हमारे फोन पे, गूगल पे वगैरह है या फिर भीम है, ठीक है, ये सारे जो ऐप है ये इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको यूज करने का क्या मतलब है और उसको यूज करके क्या मिलेगा या फिर इसका उपयोग क्या है, तो ये हम जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हमने आईएमपीएस पढ़ा था, तो पहले तो हमको आईएमपीएस को फिर से एक बार देखने की जरूरत है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि आईएमपीएस सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईएमपीएस जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, ओके, तो आईएमपीएस सिस्टम में हमने देख लिया कि किस तरह से
ओके, सो ये जो IMPS सिस्टम है उसमें क्या था कि हमने देखा कि हमारा जो फोन पे का जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का जो ऐप है उसमें पहले क्या होता था कि आपका एक मोबाइल वॉलेट होता था उस ऐप में, ठीक है, और आपको अपने बैंक से कुछ पैसे उस मोबाइल वॉलेट में डालने पड़ते थे और उसी मोबाइल वॉलेट से आप ट्रांजैक्शन या फिर पेमेंट कर सकते थे, ठीक है। मतलब उस मोबाइल वॉलेट में आपको पैसे डालने हैं और उस मोबाइल वॉलेट से आपको मर्चेंट को या फिर किसी बैंक को या फिर किसी को भी पेमेंट करना है तो आप सिर्फ उस मोबाइल वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उस मोबाइल वॉलेट में जो पैसे है वो आप फिजिकली ATM में जाकर ड्रॉ नहीं कर सकते थे, ठीक है। और अगर आपको किसी ने पैसे आपके मोबाइल वॉलेट में भेजे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने मेरे मोबाइल फोन पे के मोबाइल वॉलेट में मुझे किसी ने पैसे सेंड किए उसके फोन पे के मोबाइल वॉलेट से, तो जो मेरे फोन पे के वॉलेट में जो पैसे है वो मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन उस पर कुछ चार्ज पड़ता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे फोन पे के अकाउंट में किसी ने मुझे 1,000 रुपए भेजे है और आई वॉन्ट टू send this amount into my bank account so that I can go to ATM and I can withdraw this amount in terms of cash, ठीक है। वो 1,000 रुपए जिसने मुझे ATM मेरे फोन पे के वॉलेट में भेजे है, मैं वो कैश में उसको विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता था कि मुझे वो अकाउंट में फिर से मेरे वो पैसे ट्रांसफर करने पड़ते थे। लेकिन जब मैं मेरे 1,000 रुपए वॉलेट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए करता था, तब क्या प्रॉब्लम होती थी कि थोड़ी सी अमाउंट कट हो जाती थी, ठीक है, उस पर फीस चार्ज होती थी। मतलब 1,000 रुपए अगर मैंने ट्रांसफर किए तो 900 ही ट्रांसफर हो पाते थे, 100 रुपया कट जाता था फीस में, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम बनाया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और आप किसी को भी, ठीक है, आप इजीली पैसे ट्रांसफर कर सको अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में डायरेक्टली, ठीक है। तो UPI प्लेटफॉर्म हेल्प्स द बैंक एंड टेक्नो कंपनीज टू मेक एप्स फॉर मनी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये जो UPI ऐप है वो क्या करता है कि जो कंपनीज है, जो बैंक्स है, ठीक है, उनको एप्स बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, मनी ट्रांजैक्शन के एप्लीकेशन बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन UPI एंड नॉन UPI बेस्ड ऐप। तो पहले के जो नॉन UPI बेस्ड ऐप थे ट्रांजैक्शन करने के, तो उसमें क्या था कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपको आपके अकाउंट में से पैसे ड्रॉ करके वॉलेट में डालने पड़ते थे, फिर वॉलेट से पैसे किसी को मर्चेंट को अगर पे करने हैं, सब्जी वाले को, दूध वाले को, तो उस वॉलेट से आपको पे करने पड़ते थे, ठीक है। अब अभी मैं वॉलेट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई मीन अ डिजिटल वॉलेट, ओके। वॉलेट मतलब जो हमारे हम जो यूजुअली हम नॉर्मल यूज करते हैं वो वॉलेट नहीं, पर्स वाला वॉलेट नहीं, ठीक है, जो ऐप का वॉलेट रहता है, ठीक है, एप्लीकेशन का जो वॉलेट रहता है वो वर्चुअली रहता है, ओके। तो ये क्या था कि ऐप से ऐप के वॉलेट में अकाउंट से पैसे लेने पड़ते थे और उसे पेमेंट करना पड़ता था, और बाद में जब हमको जरूरत पड़ी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की तो उसको फीस कट हो जाती थी। लेकिन जब UPI सिस्टम आया तो UPI बेस्ड एप्स क्या थे, दैट money stays in your account and you can directly pay to the merchant directly from your account, ठीक है। तो ये जो वॉलेट का जो सिस्टम था इसको पूरी तरह से इलिमिनेट करने की कोशिश किसने की, UPI ने, ठीक है। तो जब UPI आया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आया, तो इससे हम डायरेक्टली मेरे अकाउंट से जिस किसी को भी मुझे पैसे सेंड करने हैं उसके डायरेक्टली अकाउंट में मैं पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ विदाउट ड्रॉइंग फर्स्ट टू दी माई मोबाइल वॉलेट एंड माई मोबाइल वॉलेट टू हिज मोबाइल वॉलेट। तो अभी मोबाइल वॉलेट का काम कुछ बचा नहीं, ठीक है, डायरेक्टली अकाउंट से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ, अगर मैं अपने अकाउंट से डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर करता हूं तो मेरे अकाउंट में ही पैसे हमेशा रहेंगे, मुझे वॉलेट में
लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और मेरे पैसे सारे अकाउंट में ही रहेंगे, तो उस पे बैंक अकाउंट में अगर पैसे होते तो उस पे क्या करता है, बैंक इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। तो एक फायदा है। लेकिन अगर वॉलेट में पैसे मैं अपने ड्रॉ करके रखता हूं तो वॉलेट में तो कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका फायदा था। ठीक है, तो लेट अस समराइज। तो ये यूपीआई था, ठीक है, बेसिकली। तो यूपीआई के दो पार्ट्स है, मतलब गवर्नमेंट ने पहले यूपीआई लॉन्च किया, उसके बाद यूपीआई 2.0 भी लॉन्च किया, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट समराइज वेरियस प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो पहला तो है बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद एनएसीएच, ठीक है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटेड मंथली पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, आपके मोबाइल रिचार्ज, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका डिश टीवी का बिल, इसको क्या करता है, ऑटोमेटिकली पे करता है मंथली। वो क्या सिस्टम है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। देन एनएसीएच क्या है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये क्या है, बल्क मंथली पेमेंट्स, आपके सैलरीज, डिविडेंड, पेंशन, इंश्योरेंस, ठीक है, अगर आपको पे करने हैं किसी को तो बल्क अमाउंट में, मतलब बड़ी अमाउंट में, तो एनएसीएच था, ठीक है। देन एनएफएस क्या है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये एटीएम के नेटवर्क को मैनेज करता है, ठीक है। जो वेरियस एटीएम्स होते हैं उनका जो नेटवर्क होता है उसको मैनेज करता है ये सिस्टम। देन सीटीएस, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, ये हमने देख लिया, ठीक है। ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत ही फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। और ये याद रखने वाला डेटा है। और याद रखने वाला डेटा कैसे हम याद रख सकते हैं, उसको बार बार पढ़ के, बार बार हम उसको सुन के, बार बार हम उसको पढ़ के वो याद रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। देन यूपीआई, ठीक है। यूपीआई यूपीआई को हमने पढ़ लिया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्या है कि एक टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग डिजिटल पेमेंट्स एप्स बेस्ड ऑन द इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम, राइट। तो जो यूपीआई 1 था, 2016 में पहली बार यूपीआई को लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके बाद में 2018 में यूपीआई 2.0 को लॉन्च किया गया, मतलब यूपीआई 1 में कुछ सुधार करके, कुछ एडिशनल फीचर्स डाल के यूपीआई 2 को क्या लॉन्च किया गया, ठीक है। जैसे हमारे सेलफोन्स होते हैं, सेलफोन्स कंपनी क्या करती है, कुछ साल में नया फीचर्स, जैसे गैलेक्सी का हमारा फोन रहते, गैलेक्सी M7, फिर 7 नेक्स्ट, फिर 7 प्राइम, ठीक है, ऐसे अपग्रेड अपग्रेड करती रहती है। उस तरह से गवर्नमेंट ने, सॉरी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, पहले 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया। उसमें क्या क्या सुविधा थी, उसमें सुविधा थी क्यूआर स्कैन एंड पे टू मर्चेंट, राइट। हम क्या करते थे कि जो क्यूआर स्कैन होता है, आप अगर किसी मर्चेंट को आपने अगर बिल पे किया होगा, ठीक है, तो वो वहां क्या रहता है कि क्यूआर कोड रहता है, ठीक है। उसको सिर्फ आपको अपने मोबाइल से स्कैन करना होता है और डायरेक्टली आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको जो मर्चेंट है उसको ये नहीं पूछना पड़ता आपका नंबर बताओ, आपका अकाउंट नंबर बताओ, आपका आईएफएससी कोड बताओ, ठीक है, ये पूछने की कोई जरूरत नहीं होती। उसने बाहर अपने शॉप के आगे या फिर शॉप में एक छोटा सा एक क्यूआर कोड स्कैनर रखा होता है, आपको सिर्फ मोबाइल लेके जाना है, आपका जो ऐप जो भी आप यूज कर रहे हो, फोन पे, गूगल पे, उसको ओपन करना है और उससे स्कैन करके आपको डायरेक्टली पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो ये है क्यूआर स्कैन एंड पे टू मर्चेंट, ये सुविधा यूपीआई 1 में थी, ठीक है। उसके बाद में यू कैन लिंक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी विदाउट स्टोरिंग इन द वॉलेट फर्स्ट, ठीक है। तो ये यूपीआई का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, ये हमने पढ़ ही लिया ऑलरेडी कि आपको वॉलेट में पैसे स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने डायरेक्टली अकाउंट से ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। Such a app can have push transaction, that is remittances to family, and full transaction, monthly bill deduction by electricity, right? तो इस ऐप की मदद से हम पुश और पुल दो प्रकार के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पुश का क्या मतलब है कि आप अपने आप किसी को पैसे भेजते हो, फॉर एग्जांपल आपके घर वालों को भेजते हो या फिर आप किसी मर्चेंट को पे करते हो, ठीक है। और दूसरा होता है फुल ट्रांजैक्शन, मतलब ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं।
जैसे आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो भी अकाउंट आपका है, ठीक है, जो भी आईडी है वो आपने रजिस्टर किया हुआ है उस ऐप पे, ठीक है, बीबीपीएस पे, बीबीपीएस की मदद से, तो डायरेक्टली आपका जो महीने का बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का वो आपको भरने की भी जरूरत नहीं है, वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा। उसे बोलते हैं फुल ट्रांजैक्शन। तो यूपीआई वन की मदद से दोनों ट्रांजैक्शन पॉसिबल हुए। ओके, ठीक है। तो उसके एग्जांपल क्या है, यूपीआई बेस्ड कौन कौन से ऐप है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई बड़ी, ठीक है, एक्सिस बैंक का एक्सिस पे, देन एनपीसीआई का खुद भीम, ठीक है। भीम ऐप के बारे में आपने सुना होगा, ये खुद एनपीसीआई ने बनाया हुआ है। जैसे फोन पे, गूगल पे, ये जो प्राइवेट कंपनी के एप्स है, ठीक है, गूगल पे किसका है? गूगल का है, ठीक है। फोन पे अगला जो हमारा पेटीएम है वो किसका है? किसी चाइनीज कंपनी का है, हमने सुना था, ठीक है। लेकिन एनपीसीआई ने खुद भी अपना एक ऐप बनाया, उसका नाम है भीम, ठीक है। उसके बारे में भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में इन सारी चीजों के अलावा और कुछ चीजें यूपीआई 2.0 में ऐड करके नए तरीके से यूपीआई 2.0 को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से फीचर्स थे? ओवरड्राफ्ट अकाउंट लिंक्ड, ठीक है। तो आपका जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है वो भी आपके यूपीआई से और आपके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऐप है उनसे लिंक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा नया फीचर है? कैश ऑन डिलीवरी, यूजर मैंडेट फॉर फ्यूचर डेट, दैट इज एग्जांपल डीटीएच एंड जिम सर्विसेज, ठीक है। तो बेसिकली कैश एंड डिलीवरी का सिस्टम भी यहाँ पे यूपीआई 2.0 में आ गया, ठीक है। मतलब आप कुछ चीज खरीदते हो, ठीक है, और जब आपको डिलीवरी मिल जाती है तभी आपके अकाउंट से वो पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे जब आपको डिलीवरी मिलेगी। जब आप डिलीवरी की कंफर्मेशन लोगे तब आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका नया फीचर है, ठीक है। उसके बाद में इनवॉइस इन द इनबॉक्स, क्यूआर ऑथेंटिसिटी, वेदर मर्चेंट इज वेरीफाइड और नॉट, ठीक है। जो आपने चीज खरीदी है उसका इनवॉइस, इनवॉइस मतलब उसका क्या, उसका जो प्रोडक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन है वो भी आपके अकाउंट में, आपके इनबॉक्स में डिटेल आपको भेजा जाएगा, ठीक है। ऐसी विविध सुविधाएं यूपीआई 2.0 में दी गई, ठीक है। ओके, ओके। तो भीम, जैसे हमने अभी पढ़ा कि भीम ऐप, ठीक है। तो ये बेसिकली भीम ऐप है क्या? तो मैंने अभी आपको बताया कि भीम ऐप क्या है। ये एनपीसीआई का एक प्लेटफॉर्म है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक ऐप है, ठीक है। जैसे हमारा फोन पे, गूगल पे है, उसी तरह से ये भीम भी है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? कि जो फोन पे है किसी प्राइवेट कंपनी का है, ठीक है, और गूगल पे भी किसी प्राइवेट कंपनी का है। लेकिन भीम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो खुद 10 बैंकों ने मिलकर ये कंपनी खोली है, उसका है, ठीक है। तो भीम ऐप को 2016 में लॉन्च किया गया। इट वर्क्स ऑन एंड्रॉइड, आईओएस, एप्पल मोबाइल फोन, राइट। आपके एंड्रॉइड फोन में भी ये यूज कर सकते हैं। एप्पल का अगर आपके पास आईओएस सिस्टम है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन नॉन स्मार्टफोन, दैट इज जो हमारे बेसिक फीचर के फोन होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्मार्टफोन नहीं कहते, जो पुराने वाले हमारे फोन थे, ठीक है, नोकिया 3310, ठीक है, ये जो हमारे सादे फोन थे उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं यूएसएसडी का इस्तेमाल करके, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि यूएसएसडी क्या होता है, कि *99# और उसके बाद में कुछ और डिजिट्स आप डाल के कुछ पेमेंट करना है या फिर आपका मोबाइल का बैलेंस देखना है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको यूएसएसडी कोड कहते हैं। आपने अगर पुराने फोन्स यूज किए होंगे तो आपको ये चीज मालूम होगी, ठीक है। देन बैंक टू बैंक, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन यूजिंग मोबाइल फोन, ठीक है। ये तो सिंपली कोई भी
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, दैट इज बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन और पीयर टू पीयर। मतलब किसी व्यक्ति के मोबाइल से व्यक्ति के फोन में पैसे ट्रांसफर करने हैं या फिर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, ये भी भीम ऐप कर सकता है, ठीक है। देन नो नीड टू इंस्टॉल मल्टीपल एप्स फॉर ईच बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर आपके पास भीम है तो आपको एसबीआई आपके वेरियस बैंक अकाउंट्स के लिए वेरियस बैंक के वेरियस एप्स आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट एसबीआई में भी है, एक्सिस में भी है, बैंक ऑफ इंडिया में भी है, तो आपको ये तीनों बैंकों के एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली भीम को डाउनलोड कीजिए और तीनी एप्स का काम ये भीम अकेला कर सकता है, ठीक है। और दिस ऐप हैज 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ठीक है। और ये 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या है, मतलब अगर आपको आपके भीम से पेमेंट करना है तो आप जब पेमेंट करते हैं तो कितनी सुरक्षा दीवारें या फिर कितनी सुरक्षा ऑथेंटिकेशन सिस्टम से आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका अगर आप अपने मोबाइल से पेमेंट करते हो तो फर्स्ट जो ऑथेंटिकेशन क्या है, जो आपका सेल फोन जो आपको हमेशा आपके पास रहेगा, राइट। उसके बाद में दूसरा ऑथेंटिकेशन क्या है कि जो आपका ऐप होता है, जब आप ऐप पे क्लिक करते हो तो वो डायरेक्टली ओपन नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए कुछ आपने पासवर्ड या फिर पैटर्न लगा के रखा होता है, ठीक है। दिस इज सेकंड ऑथेंटिकेशन फैक्टर, राइट। एंड व्हाट इज थर्ड ऑथेंटिकेशन, कि जब आप एक्चुअल में पेमेंट करने जाते हो तो आपको यूपीआई आईडी डालना पड़ता है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने पेमेंट यूपीआई से किया होगा तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन किस तरह से काम कर सकता है, ठीक है। मतलब ये किस लिए होता है फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, जितने ज्यादा फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होंगे उतनी ज्यादा फ्रॉड या फिर किसी को आपका फोन चुरा करके आपके पैसे हड़प लेने की जो मतलब पॉसिबिलिटी होती है वो कम से कम होती है जितने ज्यादा फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन हो, ठीक है। जैसे आपका जो एटीएम कार्ड होता है उसमें कितने फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एटीएम कार्ड जो आप खुद के पास रहता है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या है कि जब आप एटीएम मशीन में डालते हो तो आपको वो क्या करता है कि आपका पिन पूछता है, एटीएम का पिन, राइट। और वो सिर्फ आपको ही मालूम होता है, दैट इज सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। उसके बाद पेमेंट हो जाता है। मतलब आपका जो एटीएम कार्ड है उसमें कितने ऑथेंटिकेशन है, फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन 2 है। और ये जो भीम ऐप है इसमें कितने हैं, 3, ठीक है। तो मतलब सेफर कौन सा है पेमेंट करने के लिए, आप कह सकते हैं कि भीम ऐप से पेमेंट करना ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू हमारे जो कार्ड है, जो एटीएम कार्ड है, ठीक है। अगर आपका किसी ने आप एटीएम में आप पैसे निकालते वक्त किसी ने आपका एटीएम पिन देख लिया और मान लीजिए कि आपका एटीएम उसने चुरा लिया, तो आपके वो पैसे इजीली निकाल सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 ही फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। भारत क्यूआर, ये भारत क्यूआर क्या है, ये भी एक एनपीसीआई का एक सिस्टम है। बेसिकली भारत क्यूआर का क्या मतलब है कि ये क्यूआर कोड है, ठीक है। सो ये क्यूआर कोड उसको स्कैन करके आसानी से पेमेंट किए जा सकते हैं। तो भारत क्यूआर कोड क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड क्यूआर कोड है, ठीक है। मतलब अगर किसी मर्चेंट को अपने दुकान में अगर वो भारत क्यूआर कोड का जो क्यूआर कोड अपने पास रखेगा तो उसके पास जो लोग आएंगे चीजें खरीदने के लिए वो पेटीएम से पे करे या फिर गूगल पे से या फिर फोन पे से किसी भी ऐप से वो एक ही क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो मर्चेंट होता था उसको अलग अलग क्यूआर कोड के जो इंस्ट्रूमेंट होते थे उनको रखना पड़ता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोन पे का मेरे पास एप्लीकेशन है तो उसके लिए
उस मर्चेंट के पास फोन पे का अलग से क्यूआर कोड उसको रखना पड़ता था। फिर अगर कोई गूगल पे का कस्टमर आता था गूगल पे से पे करने के लिए, तो उसको गूगल पे का भी अलग से क्यूआर कोड रखना पड़ता था, ठीक है। और अगर पेटीएम से किसी को पे करना है तो उसको पेटीएम, मतलब हर ऐप के लिए अलग अलग क्यूआर कोड रखना पड़ता था। लेकिन ये जो भारत क्यूआर कोड है वो क्या है, वो इंटीग्रेटेड है। मतलब जो भी यूपीआई से जो भी ऐप से पेमेंट करेगा उसके लिए सिर्फ सिंगल क्यूआर कोड रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आप फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे से किसी भी ऐप से पेमेंट करो तो सिंगल क्यूआर कोड ही वहां पे आपको मिलेगा किसी भी मर्चेंट के पास। सिर्फ आपको उसी एक को आप स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, देन रुपे। तो ये रुपे क्या है, रुपे प्लस पेमेंट, ये रुपे का लॉन्ग फॉर्म है। रुपे कार्ड इज वर्ल्ड 7th पेमेंट गेटवे, सिमिलर टू मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, चाइनाज यूनियन पे, बट एट लेस सर्विस चार्जेस। ओके, तो ये रुपे भी एक यूपीआई एनपीसीआई का एक सिस्टम है, ठीक है। मतलब रुपे को किसने डेवलप किया, एनपीसीआई ने, ठीक है। और रुपे क्या है, आप में से कितने लोगों को एटीएम कार्ड के बारे में पता है, मास्टर कार्ड, वीजा, आप में से कितने लोगों ने एटीएम और डेबिट कार्ड देखे हैं? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव नो अबाउट एटीएम कार्ड्स, राइट, डेबिट कार्ड्स, उसमें लिखा होता है मास्टर कार्ड, वीजा, राइट। तो ये मास्टर कार्ड, वीजा, ये क्या है? तो बेसिकली ये मास्टर कार्ड, वीजा, ये क्या है, पेमेंट गेटवेज है, ठीक है। बेसिकली ये कंपनीज है जो ये सुविधा प्रोवाइड करती है कि कार्ड से पेमेंट करने की, ठीक है। तो ये मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये क्या है, सब फॉरेन कंपनीज है। इंडिया की कोई भी पहले ऐसी कार्ड जो पेमेंट गेटवे है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। लेकिन एनपीसीआई ने रुपे को मार्केट में लाया, और रुपे कार्ड इज वर्ल्ड 7th पेमेंट गेटवे, सिमिलर टू मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड एंड चाइना यूनियन पे, ठीक है। तो ये हमारा खुद का एक कार्ड है। आपने देखा होगा कि आप अगर बैंक में जाते हो, एसबीआई के बैंक में अगर आप गए तो आपको मास्टर कार्ड ही मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मास्टर कार्ड का एटीएम मिलेगा। इसका मतलब एसबीआई ने उस मास्टर कार्ड कंपनी से एक एग्रीमेंट या फिर डील किया गया है, ठीक है, कि एसबीआई में जितने भी कस्टमर आएंगे उनको हम मास्टर कार्ड, आपका ही एटीएम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वैसे ही किसी एक्सिस बैंक ने या फिर बैंक ऑफ इंडिया में आप अगर गए, वहां पे आपने अकाउंट खोला, तो आपको एटीएम कार्ड जो देते हैं वो वीजा का मिलेगा, ठीक है। तो वीजा ये कंपनी जो है पेमेंट गेटवे की, उन्होंने उस बैंक से एग्रीमेंट किया होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि जो मनरेगा के अकाउंट है, पीएम जनधन के जो बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो पीएम जनधन योजना क्या है वो हम आगे जाकर गवर्नेंस का जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये गरीब लोगों के लिए बैंक में अकाउंट खोलने की एक, मुफ्त में अकाउंट खोलने की एक योजना गवर्नमेंट ने बनाई थी। और उनका जब अकाउंट बैंक में खुला तो उनको जो एटीएम दिया गया, जो कार्ड दिया गया उनको, वो रुपए का कार्ड था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द रुपे कार्ड सिस्टम। तो यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये आपको अटेम्प्ट करना है। सो यू फील दिस माइट बी ए टफ क्वेश्चन, बट ट्राई टू summarize or try to analyze what we have studied previously. Okay, so please attempt this question. I'm reading this question for you. Most likely consequences of implementing the unified payment interface. ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला, digital currency will totally replace the physical currency in about 2 decades. Second, foreign direct investment inflow will drastically increase. ओके, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल will become very effective. And the fourth option is mobile wallets will not be necessary for payment. ओके, तो आप अटेम्प्ट कीजिए और लेट मी नो आपको कौन सा जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है।
मैं फिर से आपको हिंदी में समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई को इम्प्लीमेंट करने की वजह से क्या फायदे हो सकते हैं या फिर उससे परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक है, यूपीआई के बारे में हमने पढ़ा। तो उसका पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन 2 डिकेड्स, मतलब 2 दशकों में जो फिजिकल करेंसी है, मतलब जो हम नोट्स यूज करते हैं, उसको टोटली रिप्लेस कर देगी डिजिटल करेंसी। मतलब 2 दशकों के बाद हमको नोट यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि अगर यूपीआई को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, जो बाहर की जो कंपनीज होती है इंडिया के बाहर की, वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगी बहुत ही ज्यादा मात्रा में। ठीक है, थर्ड है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज मतलब जो हमारे गैस की सब्सिडी होती है या फिर गरीबों को जो मनरेगा का जो उनके पेमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट को इजीली उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। यूपीआई की वजह से मोबाइल वॉलेट जो पहले हम यूज करते थे उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो क्या लगता है आपको, क्या ऑप्शन है? ओके, राहुल कह रहा है सी। ओके, देन सी बी, एवरीबडी प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और किसी को कोई आंसर देना है? सी, सी, बी, ओके, संकल्प बी और ए, सी 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 सी, ओके ओके, लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली ऑल ऑफ यू हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। तो मैंने पहले ही कहा था, तो पहले फिर से यूपीआई को हम देखते हैं। ठीक है, ओके, तो यूपीआई क्या है? यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि जो यूपीआई के आने से पहले जो पेमेंट हुआ करते थे नॉन यूपीआई ऐप से, वो क्या होता था कि हमारा जो डिजिटल वॉलेट है ऐप का, उसमें हमको हमारे अकाउंट से पैसे ड्रॉ करने पड़ते थे और वो वॉलेट में सेव करने पड़ते थे। ठीक है, और फिर वॉलेट से ही हम पेमेंट कर पाते थे। ठीक है, डिजिटल वॉलेट से। लेकिन जब यूपीआई आया तो यूपीआई से क्या हो गया कि जो हमारा डिजिटल वॉलेट है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, विदाउट यूजिंग डिजिटल वॉलेट हम डायरेक्टली अकाउंट से पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करने में सक्षम हो गए यूपीआई की वजह से। और यहाँ पे देखिए जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्लियरली कह रहा है कि मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। सो ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या कहता है कि डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डिकेड्स। तो ये बेसिकली क्या है, वेरी एग्जैजरेटिव स्टेटमेंट है कि अगर यूपीआई को अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो 2 दशकों में पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम आ जाएगा और कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी। तो ये क्या है कि पूरी तरह से एग्जेजरेटिव सिस्टम है, मतलब इसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, वो ऐसा ही हो गया कि जैसे अगर गवर्नमेंट ने ये योजना इंप्लीमेंट की, गवर्नमेंट की बड़ी बहुत सारी जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती है गरीब लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि 10 सालों में भारत भारत में जो जो भी गरीबी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? ठीक है, 70 साल से आज भी हमारे देश में गरीब लोग एग्जिस्ट करते हैं। 70 साल से हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन 70 साल से फिर भी इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही क्या वो कहते हैं कि बहुत ही एग्जेजरेटिव स्टेटमेंट है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, सेकेंड वन इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। ठीक है, सो बेसिकली आपने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जिन लोगों ने भी आंसर दिया, तो इट्स ओके बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमने अभी तक ये पार्ट पढ़ा नहीं है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, तो ये आंसर आपने गलत दिया तो इसका कोई
ठीक है, क्योंकि आपको वो पता नहीं है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का और यूपीआई का दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज रॉन्ग। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। सो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये कुछ हद तक सही है, ठीक है। तो मोबाइल वॉलेट की वजह से डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल कुछ हद तक इजी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि विल बी वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो बेसिकली सब्सिडीज को डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीजों को करना पड़ेगा। सिर्फ यूपीआई का उपयोग करके जो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज है नॉट विल बिकम वेरी इफेक्टिव। तो ये क्या है कि आधा अधूरा स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन सबसे जो सही स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन को सही से सेटिस्फाई कर पाता है, वो कौन सा है? डी है, ठीक है। सो डी विल बी दी आंसर। ओके, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है कार्ड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको हम आसानी से अभी खत्म कर देते हैं, ठीक है। प्लास्टिक मनी, ओके। तो हम आप देखेंगे कि प्लास्टिक मनी क्या है और प्लास्टिक मनी के टाइप्स कौन से हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम देखने वाले कि जो हमारे एटीएम कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसके टाइप देखने वाले हैं। उसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी, ओके। क्योंकि कार्ड बेसिकली प्लास्टिक के होते हैं, इसीलिए उसको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। वेरी इजी। तो बेसिकली कार्ड टाइप बेस्ड पेमेंट मॉडलिटी। सो कार्ड के बेस से हम जो पेमेंट करते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया कि मोबाइल वॉलेट वगैरह वगैरह, ठीक है। मोबाइल वॉलेट से मोबाइल से कैसे पेमेंट करना है, डिजिटली कैसे पेमेंट करना है। तो हम अब प्लास्टिक मनी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। नाउ जो वेरियस कार्ड है उनके टाइप देखते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रेडिट कार्ड एंड द सेकंड वन इज डेबिट कार्ड। दिस कैटेगरी इज बेस्ड ऑन द पेमेंट मॉडलिटी, ओके। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इनके बारे में आप में से किन लोगों ने कुछ भी नहीं सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। How many of you don't know anything about credit card and debit card? Am I audible to you? आवाज आ रही है मेरी? ओके, ओके, ओके। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। प्लीज आप जल्दी से रिप्लाई, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, ट्राई टू गिव रिप्लाई एज फास्ट एज पॉसिबल, ओके। सो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि आप में से सभी को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में मालूम है, ठीक है। आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ यू हैव यूज्ड दिस कार्ड वंस इन अ लाइफ, ओके। ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों भी पेमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इट अलाउज होल्डर टू मेक परचेस ऑन क्रेडिट इवन इफ ही may not have sufficient balance in his bank account at the time of purchase, okay। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड का क्या, क्रेडिट कार्ड से हम जब पेमेंट करते हैं तो आपका जो कार्ड है, जो आपका अकाउंट है, ठीक है, उसमें पैसे हो या ना हो, आप कितनी भी जो भी कार्ड का लिमिट होता है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड है, फॉर एग्जांपल जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है कुछ, ठीक है, उसमें 50,000 की लिमिट है पर मंथ, ठीक है। तो आपके अकाउंट में अगर 50,000 है भी नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड की मदद से आप 50,000 तक की खरीद, जो क्रेडिट कार्ड से आप कुछ भी खरीद सकते हो, उसके शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आप पूछेंगे कि 50,000 तक ही क्यों? हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट अस कंसीडर उस कार्ड की लिमिट है 50,000। कुछ कार्ड होते हैं उनकी लिमिट 1 लाख भी होती है, 2 लाख भी होती है, 50 लाख भी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर सैलरी। आपकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मेरी अगर इनकम 10 लाख पर मंथ है तो मुझे बैंक
30 लाख, 40 लाख, 40 लाख या फिर मान लो 5 लाख की तक की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मुझे दे देगी। मतलब मेरे अकाउंट में वैसे हो ना हो, मैं 5 लाख रुपए की शॉपिंग कभी भी कर सकता हूँ विदाउट पेइंग सिंगल रुपी। और जो 5 लाख रुपी है वो बैंक इवेंचुअली मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगी पर महीना कुछ, ठीक है, 10,000 20,000 इस तरीके से, या फिर बल्क अमाउंट में बाद में डिडक्ट कर लेगी, ठीक है, जब मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तब, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है। लेकिन डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं? डेबिट कार्ड्स इट अलाउज होल्डर टू मेक परचेस अप टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट लाइंग इन ओन बैंक बैलेंस, ठीक है। तो डेबिट कार्ड से जब मैं पेमेंट करता हूँ या फिर डेबिट कार्ड से जब मैं अपने एटीएम से पैसे निकालता हूँ, तो डेबिट कार्ड उतने ही पैसे हम निकाल सकते हैं या फिर उतने ही पैसे की मैं शॉपिंग कर सकता हूँ डेबिट कार्ड से जितने पैसे मेरे बैंक अकाउंट में मौजूद हो, ठीक है। अगर मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 है तो मैं डेबिट कार्ड से अपने उस बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड से सिर्फ 5,000 तक की शॉपिंग कर सकता हूँ, उसके आगे 1 रुपया तक मैं खर्च नहीं कर सकता। लेकिन क्रेडिट कार्ड का ऐसा है क्या? नहीं है। अगर मेरे अकाउंट में 5,000 है और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, 50,000 की लिमिट है, तो मैं 5,000 अपने अकाउंट से खर्च करके ऊपर का फ्री में, मतलब उसके बाद में भी जो शॉपिंग है वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या होता है, customer does shopping using credit card, bank transfer to merchant from bank's own funds and later bank receives from the customer, ठीक है। तो जब मेरे अकाउंट में पैसे है ही नहीं तो मैं क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कैसे कर सकता हूँ 50,000 या फिर उससे भी ज्यादा, अगर मेरे अकाउंट में उतने पैसे है ही नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कि बैंक मुझे क्या करती है, उधार में उतने पैसे प्रोवाइड करती है। अपने फंड से बैंक मुझे पैसे मेरे क्रेडिट कार्ड में डालती है और बोलती है आप इतने अमाउंट तक आप परचेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं एक सैलरीड कस्टमर हूँ। बैंक तभी क्रेडिट कार्ड देती है जब आपकी कोई फिक्स्ड इनकम हो, ठीक है। बैंक को पता है कि ये जो कस्टमर है उनके अकाउंट में हर महीना सैलरी आ जाती है, तो कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट ऊपर चार्ज करके बैंक आपको क्रेडिट दे देती है, बेसिकली उधार में पैसे दे देती है। लेकिन डेबिट कार्ड जो होता है उससे जो हम पेमेंट करते हैं या फिर उससे जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो उतने ही कर पाते हैं जितने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे मौजूद हो, ठीक है। सो customers own bank customer does not shopping using debit card, bank does shopping using debit card, bank transfer from customers own bank account, ठीक है। तो जब मैं डेबिट कार्ड से शॉपिंग करता हूं तो मेरे खुद के अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते हैं, बैंक अपने या खुद से कुछ भी पैसे मुझे उधार नहीं देती है यहाँ पे, ठीक है। Now, customer can pay entire due amount at once or convert it into equated monthly settlement, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड की मदद से कस्टमर कैन पे इंटायर ड्यू अमाउंट एट वंस, ठीक है। तो जो भी ड्यू अमाउंट है, जो मैंने पिछले महीने 40,000 रुपए की शॉपिंग की थी फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड से, तो मैं उसको इस महीने मेरे पास 40,000 आ गए तो मैं पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं इंस्टॉलमेंट में भी पैसे पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, बैंक से जो उधार में जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया वो, ठीक है। लेकिन इफ इट हैज सफिशिएंट, डेबिट कार्ड में क्या होता है कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो हम उसके आगे परचेस नहीं कर सकते। मतलब अगर मेरे अकाउंट में 5,000 ही है तो मैं डेबिट कार्ड की मदद से सिर्फ 5,000 की शॉपिंग कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट रेट में बी चार्ज डिपेंडिंग ऑन अ बिलिंग साइकिल, ग्रेस पीरियड एंड अदर टर्म्स ऑफ कंडीशन। तो जो क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट करते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करते हैं हम वो बैंक से उधार लेके पेमेंट करते हैं, ठीक है, बेसिकली। और जो डेबिट कार्ड से हम पेमेंट करते हैं उस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हम वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। If credit card used for withdrawing money from ATM, then it's type of borrowing. Then it's a type of borrowing. So bank levies interest rate. Okay.
तो अगर हम क्रेडिट कार्ड से हम मनी विड्रॉ भी कर लेते हैं एटीएम से, तो ये भी क्या हुआ, एक बोरोइंग ही समझ लिया जाता है और उस पर भी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। ठीक है, डेबिट कार्ड कैन बी यूज टू विदड्रॉ फ्रॉम एटीएम फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस, सो नॉट बोरोइंग। और जो डेबिट कार्ड से हम अपने एटीएम से जब पैसे विड्रॉ करते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे खुद के पैसे हैं जो हमारे अकाउंट से डायरेक्टली हमने निकाले हैं। ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से क्या है कि हमारे अकाउंट में पैसे है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पैसे निकाल लिए हैं क्रेडिट कार्ड से, मतलब वो बैंक ने मुझे उधार दिए है और उस पर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये दो टाइप के कार्ड है, और एक थर्ड टाइप का भी कार्ड होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कार्ड। अ सिंगल कार्ड कंटेनिंग टू चिप्स, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, सो यू डोंट हैव टू कैरी टू सेपरेट कार्ड्स, राइट। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये दो सेपरेट सेपरेट कार्ड होते हैं बेसिकली। लेकिन अब नए जमाने में क्या हुआ है कि नए प्रकार का एक कार्ड आया है, उसे बोलते हैं हाइब्रिड कार्ड। तो वो एक ही कार्ड है, लेकिन उससे हम डेबिट कार्ड भी एज ए डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं एंड वी कैन यूज इट एज ए क्रेडिट कार्ड ऑल्सो। तो उसके लिए क्या होता है कि वहां पे चिप होती है। ठीक है, आपने अगर ठीक से डेबिट कार्ड आपने देखा होगा तो हमारा जो सिम कार्ड रहता है, तो सिम कार्ड के पीछे जो गोल्डन कलर की चिप होती है वो भी उस जैसी चिप हमारे डेबिट कार्ड में लगी होती है, राइट। तो बेसिकली ये जो हाइब्रिड कार्ड होते हैं उनके दो सिरों पे या फिर दोनों जो साइड्स है उस पे दो वो सिम कार्ड वाले चिप लगे होते हैं। एक साइड से आप एज ए डेबिट कार्ड यूज कर लोगे और दूसरे साइड से आप एज ए क्रेडिट कार्ड यूज कर ले, इसे बोलते हैं हाइब्रिड कार्ड। ठीक है, नाउ द लास्ट वन एंड द फोर्थ वन इज prepaid card. It is a subtype of debit card. While debit card is linked to a given bank account, a person can buy prepaid card even without having account. ठीक है, तो प्रीपेड कार्ड का क्या मतलब होता है कि ये एक इस प्रकार के कार्ड है जो आपको मिल जाते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। उसके लिए आपको बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल IRCTC's UBI prepaid card which can be used for buying rail tickets, meals, etc. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर मेट्रो में किसी ने दिल्ली मेट्रो या फिर अभी मुंबई में तो आई एक ही जगह पे आई है, लेकिन दिल्ली में क्या सिस्टम है कि आप अगर मेट्रो का टिकट खरीदने जाओगे तो आपको बेसिकली एक कार्ड दिया जाता है। ठीक है, आप पैसे देकर 1,000 रुपए का कार्ड आप ले लेते हो, और जब आपको आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे आपको जब एंट्री लेते हो तो वहां पे आपको कार्ड स्वैप करना पड़ता है और उससे आपका ऑटोमेटिकली फेयर चार्ज है वो कट हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको हर जगह पे आपको अगर मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए टिकट काउंटर में जाकर टिकट कैश देकर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको वो कार्ड हो अपने साथ कैरी करना पड़ता है और उसको रिचार्ज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो वो किसी बैंक अकाउंट का कार्ड नहीं होता है, किसी बैंक से लिंक नहीं होता है, वो बेसिकली कार्ड होता है और उसको सिर्फ रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रीपेड कार्ड। तो ये कुछ कार्ड्स के टाइप है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है, दिस इज करंट बेस्ड टॉपिक। उसके बाद में हम एटीएम कार्ड्स के बारे में थोड़ी और डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद में वेरियस टाइप्स ऑफ एटीएम्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ओके। So this is all about today's lecture. Okay, now you can leave this lecture, everybody. Bye bye everybody, good night. If you have any doubt you can ask, otherwise you can leave this lecture. If you have any doubt you can ask, otherwise you can leave this lecture. Please leave the lecture, everybody. Good night, bye bye. Good night, okay, bye.
Okay.